بات کریں گے سندھ اسمبلی کے اجلاس کی۔ پیپلز پارٹی کے اویس قادر شاہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ اویس قادر شاہ کو 111 ووٹ ملے، جبکہ MQM پاکستان کی امیدوار صوفیہ سعید 36 ووٹ لے سکیں۔ آغا سراج درانی نے اویس قادر شاہ سے سندھی زبان میں حلف لیا۔ سندھ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری جاری۔ پیپلز پارٹی کے نوید اینتھونی اور MQM پاکستان کے راشد خان مد مقابل۔ Sophia Saeed Shah MPA secured 36 votes. So I declare Honorable Member Syed Awais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. پیپلز پارٹی کے اویس قادر شاہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر منتخب۔ اویس شاہ کو 111 ووٹ ملے۔ MQM پاکستان کی امیدوار صوفیہ سعید 36 ووٹ لے سکی۔ آغا سراج درانی نے اویس قادر شاہ سے سندھی زبان میں حلف لیا۔ سندھ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری جاری۔ بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عامر فاروق ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عامر، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ سندھ اسمبلی کے 18ویں اسپیکر نے اپنے منصب سنبھال لیا ہے اور ان کے 111 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مقابلے پہ جو MQM کی امیدوار تھی خاتون امیدوار اسپیکر کے لیے ان کو 36 ووٹ ملے۔ اس طرح وہ 18ویں اسپیکر منتخب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے حلف لیا اور اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے، خفیہ رائے شماری جاری ہے۔ جس طرح اسپیکر کے انتخاب میں PTI کے حمایت یافتہ 9 ارکان اور ایک جماعت اسلامی کے رکن نے حصہ نہیں لیا، اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں بھی ان 10 ارکان نے ووٹنگ کا عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو اسپیکر نے شیڈول کا اعلان کیا قائد ایوان کے لیے، جس کے لیے مراد علی شاہ جن کے نام کا اعلان بلاول بھٹو زرداری پہلے ہی کر چکے ہیں، ان کے نامزدگی فارم جمع کرا دیا گیا، جبکہ MQM کی طرف سے قائد ایوان کے لیے علی خورشیدی کا فارم جمع کرایا گیا ہے، جس کے لیے کل ووٹنگ ہوگی اور نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ جی ٹھیک ہے عامر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ کون؟ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ، MQM کے علی خورشیدی کے کاغذات نامزدگی جمع۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے قائد ایوان کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ عامر ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی عامر، کہیے گا اس بارے میں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ کون؟ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور MQM کے علی خورشیدی کے کاغذات نامزدگی جمع۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے قائد ایوان کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کہتے ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج شام 6 بجے تک ہوگی۔ تو سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور MQM کے علی خورشیدی کے کاغذات نامزدگی جمع۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے قائد ایوان کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ غیر جانبدارانہ انداز میں اسمبلی چلاؤں گا، تمام اراکین کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اویس قادر شاہ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کا حلف اٹھا لیا۔ انہوں نے اپنی سیٹ بھی سنبھال لی اور کہا کہ رولز کی بک فالو کر کے 5 سال ایوان کو بہترین انداز میں چلائیں گے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر یہاں اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں۔ انہوں نے اراکین اسمبلی سے یہ اپیل کی، یہ بھی کہا کہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو پورا وقت ملے گا۔ انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں اپنی لیڈرشپ کا، جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب پریزیڈنٹ آصف علی خان زرداری صاحب، اور میری بہن، میری مینٹور، جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، مجھے انکریج کیا، مجھے ایلیویٹ کیا، عدیف اریال ٹالپور صاحبہ کا، بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے لیگی ارکان پنجاب اسمبلی پہنچ گئے۔ کچھ دیر میں کاغذات اسمبلی چیمبر میں جمع کرائے جائیں گے اور ان کی اسکروٹنی بھی آج ہی ہوگی۔ 5:10 کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے ان کاغذات کی چیکنگ کا۔ قائد ایوان کے لیے مریم نواز اور ان کے مد مقابل ہوں گے رانا آفتاب، جن کے درمیان مقابلہ کل ہونے جا رہا ہے۔ پیر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا اور اگر مسلم لیگ نون اس میں کامیاب ہوتی ہے
تو مریم نواز पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का ये मामला है, कल इंतखाब होने जा रहा है। ऐसे में मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए लीगी अरकान पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। पंजाब असम्बली की 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए नामों पर मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून को 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग को 2-2 और IPP को 1 वजारत मिलेगी। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी को वजारत मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन भी पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे। मुमकिना पंजाब काबीना में नून लीगी वज़रा के नाम भी सामने आ गए। मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान काबीना का हिस्सा होंगे। शेर अली गुरचानी, राना इकबाल, मंशौल्ला बट, उस्मा बुखारी, तनवीर असलम मलिक भी पंजाब काबीना में शामिल होंगे। सूबे में हुकूमत साजी का मरहला जारी है। हर सूबे में बाग दौड़ नई हुकूमत को मुंतकिल होगी। निगरान हुकूमत का दौर खत्म हो जाएगा, इक़्तिदार के मुंतकिली का तरीक़ा कार क्या है, ये बता रही हैं ईमान चौधरी। इंतखाबात तो हो चुके हैं, अब अहम मरहला हुकूमत साजी का है और सियासी इत्तेहाद भी बन रहे हैं। कौमी असम्बली में 169 का मैजिक फिगर है, जिसके पास इतनी सीटें होंगी उसी की हुकूमत बनेगी और सूबों में भी हुकूमत साजी का मरहला इससे हटकर नहीं है। इंतखाबात के 21 दिन बाद आईनी तौर पर नौ मुंतखब असम्बली का इजलास आम बुलाना लाजिम होता है। पंजाब और सिंध में तो असम्बलियों के इजलास हो चुके हैं, नौ मुंतखब अरकान हल्फ भी उठा चुके हैं। चारों सूबाई असम्बलियों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स के चुनाव के बाद कायदे ऐवान मुंतखब होंगे। पंजाब असम्बली 371 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें 297 जनरल नशिस्तें हैं। खातीन की मखसूस 66 सीटें और अक़लियतों की 8 नशिस्तें हैं। किसी भी जमात को सादा अक्सरियत के लिए 166 अरकान की हिमायत दरकार है। सिंध का ऐवान कुल 168 अरकान पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जनरल नशिस्तों की तादाद 130, खातीन की 29 और अक़लियतों की 9 ख़ुसूसी नशिस्तें हैं। हुकूमत बनाने के लिए 85 नशिस्तों की ज़रूरत होती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद 145 है और सूबे में 115 में से 113 सीटों पर पोलिंग हुई। खातीन की 26 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशिस्तें हैं और किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए 73 सीटों की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में कुल 51 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। खातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के बाद अरकान की कुल तादाद 65 है। किसी भी जमात को सादा अक्सरियत के लिए 33 नशिस्तों की ज़रूरत है। अभी आपको आगाह करते हैं, सजावल की जुडिशल सब जेल से 3 खतरनाक कैदी फरार हो गए। तीनों कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर फरार हुए हैं और सब जेल इंतजामिया पूरी रात कैदियों के फरार होने से बिल्कुल बेखबर रही। सजावल की जुडिशल सब जेल है, जहां से बताया जा रहा है कि 3 खतरनाक कैदी फरार हुए हैं और तीनों कैदी बैरक की खिड़की को तोड़कर फरार होने में कामयाब हुए हैं और सब जेल की इंतजामिया पूरी रात कैदियों के फरार होने से बेखबर रही है। ये लम्हा कुछ इस तरह का है कि सजावल की जुडिशल सब जेल में 3 खतरनाक कैदी फरार हो गए हैं और आपको बताते चलें कि तीनों कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर फरार हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि जो कैदी फरार हुए हैं ये खतरनाक कैदी हैं। सब जेल इंतजामिया पूरी रात कैदियों के फरार होने से बेखबर रही। लम्हा फिक्रिया जेल इंतजामिया के लिए सजावल की जुडिशल सब जेल है, जहां से 3 कैदी फरार हुए हैं और बताया जा रहा है कि तीनों कैदी खतरनाक थे। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। वीकेंड पर सयाहों का रश, शहरियों की बर्फ में अटकेलियां। आपको आगाह कर रहे हैं मौसम के हाल से कि मलका कोहसार में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। हर तरफ सफेदी छा गई है और वीकेंड है, ऐसे में सयाहों ने भरपूर इसका फ़ायदा उठाया है। सयाहों का रश दिखाई दे रहा है मलका कोहसार मरी में, जो कि बर्फ़ में अटकेलियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए की बचत करके किफ़ायत और बचत का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का दौर तरक्की और खुशहाली का सुनहरी दौर था। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की मुदब्बिराना क़यादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। जिंदा कौमें चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना जुर्रत और मेहनत से करती हैं। मुसलसल शिकस्तों का सामना करती लाहौर कलंदर्स को एक और धचका लगा है। अहम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कराची किंग्स के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार होकर HPL PSL लाइन से बाहर हो गए हैं। हारिस रऊफ गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स के खिलाफ मैच के सनसनीखेज लम्हात में हसन अली का कैच लेने के दौरान कंधे के बल गिर गए थे। उन्होंने कैच थाम लिया मगर उस दौरान वो जख्मी हो गए। फास्ट बॉलर को फौरी तौर पर तिबी अमदाद फराहम कर दी गई जबकि CT स्कैन भी करवाया गया है। मेडिकल पैनल ने फास्ट बॉलर को 4 से 6 हफ्ते आराम की हिदायत की है। टीम डायरेक्टर समीन राना और कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स और पाकिस्तान का असासा हैं। HBL PSL में उनकी कमी महसूस की जाएगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आयस्को की जानिब से स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मैचेस का इनेकाद किया गया। रावलपिंडी में होने वाले स्पोर्ट्स गाला में IHQ के अफसरान और स्टाफ ने दोनों कैटेगरीज में भरपूर शिरकत की। शुरका ने कहा कि इस किस्म के इवेंट का इनेकाद उनकी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ मजीद बेहतर अंदाज में सरअंजाम देने में मददगार साबित होगा और इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद बाकायदगी से होना चाहिए। तर्जुमान IHQ राजा आसिम ने कहा कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी IHQ इंतजामिया सारिफीन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी और बिजली से मुतल्लिक़ शिकायत के अज़ाले के लिए कोशां हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk।